What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Wednesday, 29th of April, and tomorrow we have Sensex monthly expiry. Yesterday was Nifty's monthly expiry and the markets expired exactly around 24,000 round number levels, and today the markets opened with a mild gap up, around 50 point gap up के साथ markets open हुआ. But right after the markets opened, the markets saw a relentless up move of almost 300 points. 24,050 से 24,350 तक एक unidirectional up move आया, and while the markets moved higher, there was an expansion in the walls as well. And then the markets made a top at 24,350, and from there we saw a sell-off of almost 150 points. So as we are talking now, markets are closing somewhere around 24,200 levels, and tomorrow is Sensex monthly expiry and today was Sensex 1DTE. and हमने ये चीज डिस्कस किए थे कि लास्ट निफ्टी का 1DTE पे there was a linear crush of almost 50 points, and that would make a lot of non-expiry traders again attracted to trade non-expiries. And today the Sensex trapped all those short wall traders on 1DT. The Sensex straddle opened at 630, and as the market started heading higher, the straddle also spiked. From 630, the straddle spiked to almost 730, almost 20% का एक spike देखने को मिला. And once the market started making the top and started coming down, the straddle actually started getting crushed. But nonetheless, straddle जहाँ पे open हुआ था, close भी वहीं पे हो रहा है. So non-directional traders who came in the morning and shorted the straddles at 630, 640 levels, they had to endure an up move of almost 900 points and then a fall of 400 points, with straddle practically giving no decay at all. So tomorrow again Sensex monthly expiry, and my forecast is that it's gonna be a volatile expiry, just like how the Nifty's expiry happened yesterday. So I'll be entering the expiry with a lot of caution. So let's get to the terminal and let's plan our trades. So daily chart पे the view remains the same. The markets are in a consolidation phase. 23,900 से लेके 24,600 के बीच में consolidation रहा है. And yes, यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्शनल ट्रेड्स ढूंढने के लिए ट्राई करेंगे तो थोड़ा फंस सकता है. इस बीच में जो वी हैव टू ट्रेड ओनली मीन रिवर्शन ट्रेड्स, बेसिकली बाय द डिप्स एंड सेल द राइज काइंड ऑफ अ ट्रेड स्ट्रक्चर हमको ट्रेड करना है, स्पेशली इफ यू आर ट्रेडिंग on non-expiry days. ठीक है. And also looks like the markets are kind of waiting for another round of news flow, because अभी भी कोई confirmation नहीं है कि in which direction this geopolitical tension thing is going, and the markets are waiting. Looks like the markets are waiting for another round, because US markets are already at an all-time high, but Indian markets are struggling. Generally क्या होता है कि like Indian markets थोड़ा high betas के साथ जाना चाहिए था, and अच्छे न्यूज़ के बेसिस पे markets continuously 25,000 को ascend करके ऊपर चले जाना चाहिए था. But because of the AI-led layoffs and the Indian IT companies not having any clear-cut plan for the AI revolution, so the IT sector is still looking pretty weak, because IT sector is almost 30 to 33% down from the all-time high. ठीक है. And the labor rate arbitrage का जो market है वो practically dead जैसे लग रहा है, and unless there is some sort of a revolutionary revamp in the IT sector will continue to struggle while the Indian rupee continues to weaken. So price action basis पे as I said 23,800 के नीचे हमारा व्यू जो है बेरिश होने वाला है, 23,600 के ऊपर है हमारा व्यू जो है माइल्ड बुलिश होने वाला है. इन दिस रेंज के बीच जो है तो आई बी ट्राइंग टू टेक सम मीन रिवर्शन ट्रेड्स, एज आई सेड बाय ऑन डिप एंड सेल द राइजेस काइंड ऑफ अ ट्रेड. ठीक है. टुमारो इज सेंसेक्स मंथली एक्सपायरी, एंड आज का जो सेंसेक्स का जो स्ट्रैडल था काफ़ी खतरनाक था, बिकॉज वी सॉ ऑलमोस्ट अ 200 पॉइंट ऑफ ओवरनाइट क्रश एंड मार्केट्स ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ. सेंसेक्स बेसिकली 150-200 पॉइंट्स गैप अप के साथ ओपन हुआ, बट एज द मार्केट स्टार्टेड टू हेड हायर वी सॉ अ वॉल एक्सपेंशन अलॉन्ग विद द मार्केट्स अप मूव. तो 620 से स्ट्रैडल ऑलमोस्ट 720-730 के आसपास चला गया था, एंड थ्रू आउट द डे देर वॉज नो कंसिडरेबल डीके इन द स्ट्रैडल, एंड पीपल हु एंटर्ड द स्ट्रैडल हियर दे मस्ट हैव मेड सम अमाउंट ऑफ मनी, बट nonetheless you could not actually एक्सपेक्ट दैट मार्केट स्ट्रैडल कहाँ से हाई मारेगा, कहाँ से पीक करके वापस आने वाला है. सो टुमारो अगेन वील बी ओपनिंग समवेयर अराउंड 400 रुपीज़, एंड अगर वोलेटाइल एक्सपायरी का एक्सपेक्टेशन है मार्केट्स में तो प्रॉबली 450 के आसपास स्ट्रैडल ओपन हो सकता है. बट इफ़ वी स्टार्ट ट्रेडिंग बिलो 400 before 10 o'clock, then again head with caution. Only use the spikes and use the delta moves to actually position yourself. There is no need to become a hero and try shorting the gamma right at the first tick. ठीक है. प्राइस एक्शन ट्रेड्स के बेसिस पे अगर बात करेंगे तो अगेन टुडे हैज़ बीन अ डिसेंट डे, एंड जैसे मार्केट्स क्लोज दे रहा है, मार्केट्स आर क्लोजिंग ऑलमोस्ट नॉट एट द डेज हाई बट ऑलमोस्ट सेंटर पे क्लोज कर रहा है. सो टुडेज हाई एंड टुडेज लो विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ sacrosanct floor and ceiling for tomorrow.
ये जो रेंज के बीच मार्केट्स मोस्ट प्रॉब्ली रहना चाहिए अगर फ्लैट ओपन होता है तो इफ द मार्केट ओपन्स फ्लैट देन आई विल बी वेटिंग फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली मेक सम अमाउंट ऑफ मूव इधर इस हाफ ऑफ द रेंज पे आना चाहिए, इस हाफ ऑफ द रेंज पे आना चाहिए। जिस हाफ ऑफ द रेंज पे मार्केट आएगा मैं इनिशिएट करूंगा मीन रिवर्शन ट्रेड। तो इस बैंड में मैं मीन रिवर्शन ट्रेड इनिशिएट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डबल टॉप काइंड ऑफ अ पैटर्न बनेगा तो यहाँ पे मैं एक मीन रिवर्शन ट्रेड इनिशिएट करूंगा एंड यहाँ पे अगर एक डबल टॉप बनेगा तो यहाँ पे भी मैं एक मीन रिवर्शन ट्रेड इनिशिएट करूंगा। अगेन ट्रेंडी डे का जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा कम है, बट अगर ट्रेंडी डे तब हो सकता है अगर मार्केट ऐसे इस पे 77,700 77,800 के ऊपर खुलेगा एंड देन विद इन द फर्स्ट 15 मिनट्स मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो आई बीन टेलिंग दिस राइट, लाइक अगर मार्केट्स को थोड़ा बड़ा मूव करना है तो विद इन द फर्स्ट 15 मिनट्स मार्केट हैज़ टू गिव द ब्रेकआउट अबव अ कॉन्फ्लुएंस लेवल। तो आज भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 10 o'clock के पहले यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो वी शुड डेफिनेटली गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्रेकआउट। अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए होंगे तो हमने ये भी डिस्कस किए थे कि यहाँ पे प्रॉफिट हमको बुक करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए होंगे तो देन यू वुड हैव मेड मनी एंड अगर प्रॉफिट बुक नहीं किएंगे तो प्रोबेबली लाइक अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे आपने ट्रेड काटे रहेंगे। सो टुमारो ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ अ व्यू इज देयर बिकॉज यहाँ पे भी एक रेंज हमको दिख रहा है एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे भी एक टॉप नजर आ रहा है, यहाँ पे भी एक टॉप नजर आ रहा है। सो ये जो टॉप है दिस विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ सैक्रोसैंक्ट टॉप। तो अगर मार्केट 78,000 के आसपास पुल करेगा एंड स्ट्रैडल विल बी ट्रेडिंग एट लेट्स से 400 रुपीज, तो इट मीन्स दैट 78,000 का कॉल जो है 200 रुपीज एंड 78 का पुट जो है 200 रुपीज ट्रेड कर रहा होगा एंड आई वुड बी विलिंग टू शॉर्ट 78,100 का कॉल विद समवेयर अराउंड 120-130 रुपीज बिकॉज 78,200 विल बी अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर टुमारो कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द क्लोजिंग इज हैपनिंग नॉट अराउंड द डेज हाई। ठीक है, बट अगर मार्केट्स में यहाँ पे ओपन होता है एंड ये लेवल को 10 o'clock के पहले ब्रीच करता है तो देन एक्सपेक्ट 78,200 ऑल्सो टू बी टेस्टेड एंड 78,200 पे थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग ये मिल सकता है तो एक 100 पॉइंट्स ऊपर स्पाइक होके वापस मार्केट रेंज के अंदर आ सकता है। ठीक है, व्हाट इफ वी ओपन विद अ बिग गैप डाउन, अगर मार्केट में बड़ा एक गैप डाउन ओपन होता है तो देन अगेन वेट फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली क्लियरली डिफाइन इट्स रेंज। कौन सा रेंज पे मार्केट ट्रेड करेगा वो थोड़ा हम लोग डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगर मार्केट स्लो को ब्रीच कर देता है तो देन ये रेंज में मार्केट रहने वाला है फॉर द एंटायर डे। बट अगेन इस रेंज भी मतलब काफ़ी वाइड रेंज हो जाता है बिकॉज हमारे पास जो स्ट्रैडल है 400 रुपीज़ का स्ट्रैडल मिलने वाला है अनटिल अनलेस यू सेल लाइक दिस ओटीएम दूर का फार ओटीएम्स चिल्लर ऑप्शंस जो बेचते हैं, पेनी ऑप्शंस जो बेचते हैं, जब तक आप वो नहीं करते हो देन ऑब्वियसली यू विल बी हिट बाय द मार्केट्स वॉलेटिलिटी एट द मनी एंड नियर द मनी। सो अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है वेट फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स का इनिशियल बैलेंस एंड इनिशियल बैलेंस अगर 200 पॉइंट से कम है तो देन ट्रेड द ब्रेकआउट एंड द ब्रेकडाउन ऑफ दिस इनिशियल बैलेंस। बट अगर इनिशियल बैलेंस ही फर्स्ट 30 मिनट्स का कैंडल ही 300 से 400 पॉइंट से ऊपर रहेगा तो देन ट्राई टू ट्रेड द मीन रिवर्शन अराउंड द नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। तो बेसिकली मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो देन वेट फॉर द मार्केट्स टू कम अराउंड दिस लेवल एंड यहाँ पे हम लोग मीन रिवर्शन ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं एंड सिमिलरली यहाँ पे हम लोग मीन रिवर्शन ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं इन केस ऑफ अ बिग गैप डाउन। अगर फ्लैट खुलता है एज आई एक्सप्लेन्ड तो वेट फॉर द मार्केट्स टू गेट इनटू अ रेंज। यहाँ पे दो रेंज बनी हुई है, दिस वन रेंज हियर एंड अनदर रेंज हियर। वेट फॉर द मार्केट्स, अगर मार्केट फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करेगा देन वेट फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली कम हियर बिकॉज मार्केट्स एक बार यहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर देता है देन ऑब्वियसली हाई लाइकलीहुड दैट द मार्केट्स विल टेस्ट दिस टुडेज लो एंड सिमिलरली वंस द मार्केट स्टार्ट्स टू ट्रेड अबव दिस लेवल वेरी हाई लाइकली दैट टुडेज हाई विल बी टेस्टेड। तो टुडेज लो एंड टुडेज हाई के आसपास हम लोग मीन रिवर्शन ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बोथ नेकेड ऑप्शंस विद स्टॉप लॉस और यू कैन इवन ट्रेड रेशियोज बिकॉज आप देख सकते हैं कि 400 रुपीज़ का जो स्ट्रैडल है बेसिकली 200 रुपये का कॉल एंड 200 रुपये का पुट मिलता है। तो इवन इफ द मार्केट मूव्स 200 और 250 पॉइंट्स इन योर डायरेक्शन यू विल मेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी विद प्रैक्टिकली लिमिटेड डाउन साइड इफ यू डू अ डेबिट रेशियोज ऑन बोथ कॉल्स एंड पुट्स डिपेंडिंग अपॉन योर डायरेक्शन। ठीक है, सो दैट वुड बी माई अप्रोच एंड ऑल्सो टुमारो अगेन expect some amount of volatility considering the fact that it's Sensex monthly expiry and trade with smaller size, trade with slightly lower variance and trade with caution. ठीक है, I'll see you after tomorrow's expiry. Till then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.